चलो, let's start. The topic today we are going to deal is the contingent contract and quasi contract. Okay, the last part of Indian Contract Act we are going to start, and that last part of the Indian Contract Act is a number one contingent contract, and another point we will discuss, that is a quasi contract. Okay, out of that, today's part which we will cover up, that is a contingent contract, is the part which we are going to cover up today. Okay, now see this contingent contract. We have got the reference of this particular topic in the wagering agreement also. Remember, wagering agreement में हमने क्या discuss किया था? A contract which is depending on the happening or not happening of certain uncertain event was considered as a wagering agreement. और आपको बताया था कि wagering agreement जो होता है, शर्त वाले agreement, वो सारे agreement क्या होते हैं बोलो void. जैसे कि we have taken out an example thereon. If it rains today, then I will pay you 500 rupees, okay? And if it did not rain today, you will pay me 500 rupees. That was a wagering agreement, okay? And the result of the wagering agreement is a void, okay? Not enforceable in the court of law. Now, many students make a confusion with the contingent contract and wagering agreement. First of all, make it clear that wagering agreement is total different concepts. It is a void agreement. It is not enforceable in the court of law. But on the other hand, contingent contract are a valid contract. They are enforceable in the court of law. Okay. But now, of course, the very first thing which will be in your mind, what is mean by this word contingent contract? इसका मतलब exactly क्या आता है? ये हमारा पहला सवाल यहाँ पे क्या हो जाता है? Create हो जाता है. देखो अभी contract are generally of the two types. Contract generally क्या होता है? दो टाइप के होते हैं. क्या दो टाइप हो सकते हैं? देखो, it may be absolute contract or it may be a contingent contract. What may be the two types of contract? Got the point? It may be absolute contract or it may be a contingent contract. Now we will try to understand both these concepts. Okay. I will sell you my car for rupees 5 lakh and you will pay me 5 lakh rupees. Now this is an absolute contract. Now there is no any kind of the condition is involved in this question contract. इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या नहीं इन्वॉल्व है बोलो, कोई भी कंडीशन इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे. ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है बोलो, एब्सोल्यूट है, क्योंकि सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड इश्यूज है ना. वहाँ पे मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगी और आप मुझे कार दे दोगे, खत्म. वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वहाँ पे क्रिएट हो गया. सो देखो, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वन वेयर प्रॉमिसर अंडरटेक टू परफॉर्म द प्रॉमिस इन एनी इवेंट विदाउट एनी कंडीशन. कोई भी कंडीशन ना रखते हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉमिस को परफॉर्म करना है ना, तब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है बोलो, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया जाता है. देन मेरा सो व्हेन प्रॉमिसर अंडरटेक टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एनी कंडीशन, देन इट इज कंसीडर्ड एज क्या कंसीडर किया गया, उसको एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया गया. आया ध्यान में आपको? नाउ वी विल मूव टू द अपोजिट साइड. उस चीज को डिस्कस करते हम लोग वहां पे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. Keep in mind the section number of the contingent contract. It is section 31, which is the section for the contingent contract. कौन सा वाला section है बोलो? Section 31 इसके लिए क्या होता है, अप्लाई होता है वहाँ पे. Let's see क्या कहता है. देखो ये section 31 अब यहाँ पे a contract to do or not to do something. वापस back to the same point. Contingent contract किसी चीज को करने के लिए भी हो सकता है या किसी चीज को ना करने के लिए भी हो सकता है. ठीक है. A contingent contract is a contract to do or not to do something. If some collateral event to such a contract does or does not happen. मतलब किसी collateral घटना के होने या ना होने पे जो contract depend है, उसे क्या बोला जाता है बोलो? It's called as a contingent contract. What it is called as a? It's called as a contingent contract. A contract to do or not to do something on the happening or not happening of some collateral event. किसी collateral event के होने या ना होने पे जो contract का होना या ना होना depend है, ऐसे क्या बोला जाता है, contingent contract. और contingent contract क्या है देखो, a contract to do or not to do something. पहला हिस्सा, if some event collateral to such a contract does or does not happen. Okay, we will take out an example. An example की मदद से वापस इस definition को हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं वहां पे. लेट्स हैव एन एग्जांपल. देखो क्या है, सपोज ना मैंने फायर इंश्योरेंस निकाला है इंश्योरेंस कंपनी से. कौन सा वाला इंश्योरेंस निकाला मैंने? फायर इंश्योरेंस निकाला है. अब ना फायर इंश्योरेंस की टर्म जनरली क्या होती है, देखो वहां पे ध्यान में आपको.
फायर इंश्योरेंस की टर्म ऐसे होगी आपकी, हाँ, कि अगर आपके घर को, हाँ, आग लगती है, इफ योर हाउस गेट बर्न बाय व्हाटएवर रीजन, हाँ, देन इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू 5 लाख रुपीज। सपोज मैंने कितने रुपए का इंश्योरेंस निकाला, मैंने इंश्योरेंस निकाला वहां पे 5 लाख रुपए का, हाउस इंश्योरेंस प्लस फायर इंश्योरेंस, हाँ, तो अगर मेरे घर को आग लगती है तो, हाँ, मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी वहां पे, जो भी वो मेरा डिसाइडेड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है वो क्या करेगी वहां पे मुझे पे आउट करेगी। ध्यान में रहा है? इसका मतलब देखो, अब एग्जांपल को पहले दिमाग में रखो, हाँ, आई हैव टेकन अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड इंश्योरेंस कंपनी इज दैट कि अगर मेरे घर को आग लगती है तो इंश्योरेंस कंपनी, हाँ, मुझे क्या करेगी वहां पे इंश्योरेंस कंपनी, जो भी वो कंपनसेशन डिसाइडेड है, जितने भी रुपए की पॉलिसी मैंने ली है उतनी अमाउंट मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी वहां पे कर देगी। अब हम लोग एग्जांपल में जाते हैं, हाँ, इंश्योरेंस कंपनी मुझे 5 लाख पे करेगी या नहीं करेगी, हाँ, ये किस पे डिपेंड है, मेरे घर को आग लगती है या नहीं लगती है इस पे। इंश्योरेंस कंपनी मुझे 5 लाख रुपए पे करेगी या नहीं करेगी, ये किस पे डिपेंड है, मेरे घर को आग लगती है या नहीं, इस पे ये डिपेंड है वहां पे। लेट्स से देखो, कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, इंश्योरेंस कंपनी मुझे 5 लाख देगी या नहीं देगी, हाँ, ये किस पे डिपेंड है, देखो, एक कोलेट्रल इवेंट पे, एक इंडिपेंडेंट इवेंट पे। वो कोलेट्रल इवेंट क्या है बोलो वहां पे, हाँ, मेरे घर को आग लगती है या नहीं लगती है, दैट इज does or does not happen. If my house get burned, insurance company will pay me 5 lakh rupees. This is considered as a contingent contract. इसको क्या बोला जाता है बोलो, contingent contract यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, हाँ। जैसे देखो, आपको वो एग्जांपल याद है, मैंने पीछे आपको बताया था कि एक्स वाई को मेरे शॉप में लेके आता है, हाँ, और वो एक्स क्या बोलता है बोलो कि इस वाई को जो भी माल चाहिए ना उसको उधार माल क्या करो आप दो। एक्स वाई को मेरे शॉप में लेके आता है, हाँ, और वो शॉप ओनर को क्या बोलता है, इस वाई को जो भी माल चाहिए उसको आप क्रेडिट पे वो माल क्या करो वहां पे दो, हाँ। अगर उसने पैसे नहीं दिए देन आई विल पे, मैं वो अगर पैसे नहीं देता है तो मैं पे कर दूंगा, मतलब वापस उसके पैसे देने या ना देने पे डिपेंड है कि श्योरिटी, हाँ, गारंटर पैसे देगा या नहीं देगा वहां पे, हाँ। सो इवन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी एक तरह से क्या होगा बोलो, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हाँ। ध्यान में रखे, देखो आप लोगों को सबको वहां पे contract to do or not to do something, हाँ, if some event collateral to that such a contract does or does not happen, हाँ, अगर आपके घर को आग लगती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी, अगर प्रिंसिपल डेट और कर्जा नहीं भरता है तो श्योरिटी भरेगा, हाँ। मतलब श्योरिटी का भरना या ना भरना किस पे डिपेंड है बोलो, प्रिंसिपल डेटर के कर्जे को पे करने या ना करने पे वो क्या है वहां पे डिपेंड है। आ रहा है में आपको सबको, हाँ। सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो किसी चीज के होने या ना होने पे डिपेंड होता है, उसे क्या बोला जाता है बोलो, इट्स कंसिडर्ड एज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसको कंसिडर किया जाता है वहां पे, हाँ। मॉडल दिया हुआ एग्जांपल भी वो आग वाला एग्जांपल है, देखो, हाँ, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 1 लाख रुपीज इफ बीज हाउसेज आर बर्न्ड, अगर बी के घर को आग लगती है तो, हाँ, क्या हो जाएगा देखो वहां पे, ए मतलब इंश्योरेंस कंपनी एक तरह से बी को कितने रुपए देगी वहां पे, 1 लाख रुपीज वहां पे क्या करेगी, पे करेगी, ठीक है। नाउ सिंपल, दिस इज अ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ, एंड देयरफॉर इट्स कॉल्ड एज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सो ऑलमोस्ट सारे जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ना क्या होता है बोलो, दे आर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी में पढ़ते हैं वहां पे, हाँ। देखो अभी हमें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज क्या रखनी, देखो, जो इवेंट है जिसपे आपके कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना डिपेंड है, वो इवेंट कैसी होनी चाहिए, कोलैटरल इवेंट, क्योंकि डेफिनेशन में दिया है ना, क्या दिया था देखो डेफिनेशन वापस, वो कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच अ कॉन्ट्रैक्ट, कोलैटरल, हाँ, वो जो इवेंट होगी जिसपे कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना डिपेंड है, वो इवेंट कैसी होगी बोलो, कोलैटरल इवेंट होगी, does or does not happen, okay। so हमें किस वर्ड का मीनिंग देखना है, देखो यहाँ पे कोलैटरल वर्ड का मीनिंग हमें क्या करना है यहाँ पे डिस्कस करना है, हाँ, ठीक है। सो लेट्स हैव द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कोलैटरल हियर नाउ, हाँ। कोलैटरल का मीनिंग पोलक और मुल्ला करके ऑथर है, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के फेमस ऑथर है, कॉन्ट्रैक्ट का इनका बुक बहुत ज्यादा फेमस है हमारे लॉ फैकल्टी में, हाँ। तो कॉन्ट्रैक्ट का पोलक और मुल्ला का जो बुक है उसमें कोलैटरल इवेंट वर्ड क्या किया गया, डिफाइन किया गया, हाँ। Let's have a look over the meaning of word collateral event, हाँ। Collateral event मतलब क्या देखो,
an event which is neither directly promised as a part of contract nor the whole of the consideration for the promise. जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन हिस्सा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का मेन हिस्सा क्या देखो, इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनी जो पैसे दे रही है ये कोलैटरल इवेंट पे डिपेंड है, और वो कोलैटरल इवेंट क्या बोलो वहां पे, ये कोलैटरल इवेंट है वहां पे, दैट इज हाउस का जलना या ना जलना, ये वहां पे क्या कंसिडर की गई है, कोलैटरल इवेंट कंसिडर की गई है। हाँ, सो ध्यान में रहे आपको कि कोलैटरल इवेंट मेन इवेंट नहीं है, मेन इवेंट क्या है, इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी या नहीं देगी, ये मेन इवेंट है वहां पे। हाँ, और उस पे वो जिस पे डिपेंड है ऐसी वो कोलैटरल इवेंट क्या है बोलो, फायर ब्रोकआउट होगा या नहीं होगा, ये कोलैटरल इवेंट है। तो फायर ब्रोकआउट होना ना होना एक अलग इवेंट है, हाँ, और इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी या नहीं देगी एक अलग इवेंट है, लेकिन ये कोलैटरल है, इसको कोलैटरल है, मेन इवेंट से कोलैटरल है। तो कोलैटरल इवेंट मतलब डायरेक्टली प्रॉमिस एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हाँ, इवन होल कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन भी नहीं है, वो कोलैटरल इवेंट एक अलग बट उससे कनेक्टेड इवेंट वहां पे कंसिडर की गई है। हाँ, देखो एग्जांपल देखते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे रुपीज 1 लाख इफ दीस हाउसेस आर बर्न, एज यूजुअल एग्जांपल आया वो वहां पे, ये कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट है बोलो, दिस इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, हियर द बर्निंग ऑफ द बीज हाउस is neither a performance promised as a part of contract nor it is a consideration obtained from the bee। देखो घर का जलना ये कोई कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस का प्रॉमिस है क्या, देखो वहां पे नहीं ना, कोई अपना घर जलाने में इंटरेस्टेड होगा क्या वहां पे, नहीं, या घर का जलना क्या ये कंसिडरेशन हो सकता है क्या, नहीं। हाँ, सो द लायबिलिटी ऑफ द एयर arises only on the happening of collateral event, अगर वो हाउस जलता है तो ही इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करने के लिए लायबल होगी, मतलब लायबिलिटी कब अराइज होती है वो लोग कि ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ कोलैटरल इवेंट, अगर वो कोलैटरल इवेंट हैपन होती है तो ही वो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अराइज वहां पे हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। और यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियरली याद रखो, जैसे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन द हैपनिंग होता है, हाँ, वैसे कभी कभी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी डिपेंडिंग ऑन द नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, किसी इवेंट के होने पे जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड होता है ना, वैसे ही किसी इवेंट के ना होने पे भी वो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड होता है। हाँ, मैं क्या करती हूँ आपको ना अपनी भाषा में अपना एक जनरल एग्जांपल बताती हूँ कि इन दोनों चीजें के लिए, तो आपको कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और ज्यादा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हाँ, अभी ना जस्ट पहले तो ये क्लियर कर लो कि ये इस एग्जाम्पल में अभी हमारी 4 महीने पहले वाली नॉर्मल सिचुएशन थी। हाँ, ये कोरोना एंड ऑल दैट कुछ सिचुएशन यहाँ पे नहीं था, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझो क्या हुआ। देखो इचलकरंजी में ना एक पर्सन को एक एटोलूम का मशीन लेना था। हाँ, इचलकरंजी में एक पर्सन को क्या करना था, एक एटोलूम का मशीन खरीदना था। हाँ, अब उसका जो मशीन है ना, वो मशीन क्या हो रहा है, देखो किसी फॉरेन कंट्री से वो मशीन आ रहा है। उसका मशीन कहाँ से आ रहा है, देखो उसका मशीन आ रहा है किसी फॉरेन कंट्री से, उसका मशीन वहां पे आ रहा है। हाँ, अब वो मशीन आ रहा है शिप से, मशीन कैसे आ रहा है बोलो, जहाज से, शिप से वो मशीन क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है वहां पे। हाँ, अब कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ना, हाँ, उस इचलकरंजी के एक्स पर्सन ने, हाँ, वो मशीन किससे मंगवाया बोलो, वाई पर्सन से, जो कि मुंबई रहता है, समझो वाई पर्सन कहाँ पे रहता है, मुंबई, और ये एटोलूम का मशीन, हाँ, किसको सप्लाई करने वाला है, हमारे इचलकरंजी के एक्स पर्सन को, जिसको वो एटोलूम का मशीन खरीदना है उसको सप्लाई करने वाला है। बट इस वाई ने कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किससे किया, देखो समझो शिप से आ रहा है ना, तो शिप के कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, शिप का डूबने का चांस बहुत ज्यादा भी होता है वहां पे। हाँ, सो इसने बहुत क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट से किया, देखो यहाँ पे, अगर शिप सेफली अराइव होता है तो मैं आपको एटोलूम की मशीन डिलीवर कर दूंगा। तो मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है बोलो वहां पे, एटोलूम का मशीन डिलीवर करना। बट ये मेन जो कॉन्ट्रैक्ट है टू डू, हाँ, टू परफॉर्म, हाँ, जो मैंने आपको बताया हैपनिंग, हाँ, अगर शिप सेफली अराइव होता है, हाँ, तो मैं आपको एटोलूम की मशीन डिलीवर कर दूंगा। अभी आपको ना कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इसमें और अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग घटनाएं, ध्यान में रह के देखो। हाँ, शिप का सेफली अराइव होना या ना होना एक अलग घटना है। हाँ, और मैं आपको एटोलूम की मशीन डिलीवर कर दूंगा, दिस प्रॉमिस बाय y to x इज अ डिफरेंट इवेंट, एक अलग डिफरेंट इवेंट है ये, ध्यान में रहे आपको। हाँ, तो शिप के सेफली अराइव होने या ना होने पे ये इवेंट डिपेंड है ना कि मैं आपको एटोलूम मशीन डिलीवर कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, y प्रॉमिस टू x। तो वो जो इवेंट है, कौन सी वाली इवेंट बोलो, शिप का सेफली अराइव होना या ना होना, हाँ,
वो इवेंट क्या है बोलो, वहाँ पे कोलैटरल इवेंट है। हाँ, और उस कोलैटरल इवेंट पे ये मेन इवेंट क्या है वहाँ पे डिपेंड है कि मैं आपको एटोलूम की मशीन तभी डिलीवर कर पाऊंगी अगर वो शिप क्या होता है बोलो वहाँ पे सेफली अराइव होता है। हाँ, ध्यान में है। सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड है बोलो, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड है बोलो, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग पे डिपेंड है। अगर शिप सेफली अराइव होता है तो वहां पे क्या हो जाएगा बोलो, कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म कर सकते हो, नहीं तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। आया ध्यान में आपको? अभी ना बस इसी एग्जाम्पल को हम लोग क्या करते हैं, उल्टा लेते हैं। हाँ, नॉट हैपनिंग के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ताकि आपको वो नॉट हैपनिंग वाला वर्ड भी क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, और क्लियर भी हो जाएगा वहां पे आपके इसके सामने। देखो अब ना मैंने शिप का इंश्योरेंस निकाला है। अब थोड़ा एग्जाम्पल को क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग करते हैं, बट शिप वाला एग्जाम्पल ही हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अब मैंने क्या किया ध्यान में आपको, मैंने क्या किया वहां पे, आई हैव टेकन द इंश्योरेंस ऑन माई शिप। मेरे शिप पे मैंने क्या लिया हुआ है, वहां पे इंश्योरेंस लिया हुआ है। हाँ, अब इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉमिस मुझे क्या बोलो कि अगर आपका शिप सेफली अराइव नहीं होता है, मतलब इसका मतलब ध्यान में रहा है, आपका शिप क्या हो गया वहां पे, डूब गया। हाँ, सिंक हो गया। समझो अगर आपका शिप सेफली अराइव नहीं होता है, इन द सेंस आपका शिप डूब गया समझो, तो ठीक इंश्योरेंस कंपनी आपको, मैंने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस निकाला है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 लाख रुपए देने के लिए लायबल हो जाएगी। ध्यान में आ रहा है आपको? मतलब यहाँ पे सिचुएशन क्या बोलो, उल्टी सिचुएशन है कि अगर आपका शिप सेफली अराइव नहीं होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देने के लिए क्या हो जाएगी, लायबल हो जाएगी। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड है बोलो, नॉट हैपनिंग पे डिपेंड है। इफ योर शिप डिड नॉट अराइव सेफली then you will be liable to make the payment वहाँ पे। हाँ, आ रहा है ध्यान में आपको? So that is the point which is stated out here। तो contingent contracts is a contract to do or not to do something। हाँ, if some collateral event शिप सेफली अराइव हो गए तो एटोलूम मशीन डिलीवर कर दूंगी, डज हैपन, और शिप सेफली नहीं अराइव हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देने के लिए लायबल हो जाएगी। डज नॉट हैपन पे डिपेंड है तो उसे क्या बोला जाता है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया जाता है। हाँ, आया क्या ध्यान में? देखो वापस एक बार फाइनल बार रीड आउट करते हैं डेफिनेशन और आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट collateral to such a contract does or does not happen। does का एग्जांपल, शिप सेफली अराइव हुआ तो एटोलूम मशीन डिलीवर कर दूंगी। हाँ, और does not का एग्जांपल, आपका शिप डूब गया, सेफली अराइव नहीं हो आया, हाँ, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपके इंश्योरेंस के पैसे देने के लिए आपको लायबल रहेगी वहां पे। हाँ, तो दैट आर टू एग्जांपल्स इन वन। शिप के सेफ आने पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है और दूसरे में शिप के सेफ ना आने पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है वहां पे। हाँ, so this is considered as a contingent contract, इसको कंसिडर किया जाता है। ओके, नाउ इन डिटेल इनके रूल्स को क्या करते हैं, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं वहां पे। हाँ, डेफिनेशन अराउंड लर्न हो गई क्या? देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। हाँ, इफ सम इवेंट collateral to such a contract does or does not happen। a contract to do or not to do something if some event collateral to such a contract does or does not happen, this means as a contingent contract consider किया जाता है। Let's have a look on the second point of the contingent contract, that is essentials of the valid contingent contract। Number 1 point देखो वहाँ पे, the performance of contingent contract would be depend upon the happening or not happening of certain event or a condition। हाँ, ऑलरेडी आपको पता है। हैपनिंग का एग्जांपल क्या होगा बोलो, शिप का सेफली अराइव होना, और नॉट हैपनिंग का एग्जांपल क्या होगा बोलो, शिप सेफली अराइव नहीं हो रहा। हाँ, सो द कंडीशन में बी प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट इज द न्यू वर्ड फॉर यू। अभी हाँ, ये जो कंडीशन है ना जिसपे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है, ये कंडीशन कैसी हो सकती है बोलो, ये कंडीशन प्रेसिडेंट भी हो सकती है और ये कंडीशन सब्सिक्वेंट भी हो सकती है। हाँ, अब इसका मीनिंग देखो, कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट करने के पहले जो कंडीशन आती है ना उसे बोला जाता है कंडीशन प्रेसिडेंट। जैसे कि ध्यान में आ रहा है, अगर शिप सेफली अराइव होता है तो आपको माल दे दूंगी। हाँ, इसका मतलब ये कंडीशन प्रेसिडेंट है ना, शिप को पहले सेफली अराइव होना पड़ेगा तभी हम लोग माल डिलीवर कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के पहले जिस कंडीशन को हैपन होना पड़ता है उसे क्या बोला जाता है बोलो, इट्स कॉल्ड एज अ कंडीशन प्रेसिडेंट। पहले आती है, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आती है
उसे बोला जाता है कंडीशन सब्सिक्वेंट कंसिडर किया जाता है वहां पे। हाँ, लेट्स हैव एन एग्जांपल फॉर कंडीशन सब्सिक्वेंट। हाँ, सी सपोज मैंने क्या किया, अपना घर ना आपको रेंट पे दिया हुआ है, आई हैव गिवन माय हाउस ऑन अ रेंटल बेसिस, लीज डीड पे आपको दिया हुआ है। हाँ, और कंडीशन डाली है मैंने वहां पे कि अगर इस घर में आप किसी सब लीजी को रखते हो, हाँ सब लीजी को मतलब ना कुछ लोग वो पेइंग गेस्ट वगैरह घर के अंदर वापस एक किराएदार रख लेते हैं, ठीक, मेरे परमिशन के बिना ये घर आप और किसी को अगर लीज पे देते हो तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अब मैंने आपको घर ऑलरेडी लीज पे दिया है ना, और कंडीशन कब की है, देखो कॉन्ट्रैक्ट के बाद की कंडीशन है कि अगर आप बाद में हाँ किसी सब लीजी को यहाँ पे रख के लेते हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वहां पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये कंडीशन कैसी बोलो, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वाली कंडीशन है। हाँ, इसलिए इसको कंडीशन कैसी बोली जाती है, सब्सिक्वेंट कंडीशन कंसिडर किया जाता है वहां पे। हाँ, सो कंडीशन जिसपे ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड होता है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो दो टाइप की हो सकती है। नंबर वन, कंडीशन प्रेसिडेंट हो सकती है जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के पहले आती है। हाँ, और कंडीशन सब्सिक्वेंट हो सकती है जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म या कॉन्ट्रैक्ट होने के अराइज होने के बाद में आ सकती है। नाउ नंबर 2 पॉइंट आपको बताया मैंने ऑलरेडी। हाँ, जो इवेंट है जिसपे ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है वो इवेंट कैसी होगी बोलो, इवेंट कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट होगी। इवेंट कैसी होगी बोलो, इवेंट विल बी कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट इवेंट वहां पे हो जाएगी। हाँ, हम लोग ऑलरेडी ऊपर कोलैटरल का मीनिंग क्या कर चुके हैं वहां पे, कोलैटरल का मीनिंग हम लोग क्या कर चुके हैं बोलो, यहाँ पे ऑलरेडी क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं वहां पे। हाँ, तो इवेंट कैसी होनी चाहिए, देखो इवेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको वो एग्जांपल याद है ना शिप वाला। हाँ, शिप का सेफली अराइव होना या ना होना एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। हाँ, कोलैटरल इवेंट है जिसपे डिपेंड है कि मैं आपको माल सप्लाई कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो ये दो अलग अलग भाग है। हाँ, सो जो वो कोलैटरल इवेंट है आपके मेन इवेंट का पार्ट नहीं है। हाँ, द इवेंट शुड बी neither performance promise nor a consideration for a promise। वो शिप का सेफली अराइव होना या ना होना ये प्रॉमिस किया है कि मैंने आपको, नहीं मैंने आपको प्रॉमिस किया माल आपको डिलीवर कर दूंगी वहां पे। हाँ, सो इसका मतलब वो एक अलग इवेंट है, कोलैटरल इवेंट है जिसपे मेरा मेन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है कि अगर शिप सेफली अराइव होता है तो मैं आपको माल डिलीवर कर दूंगी वहां पे। हाँ, देखो एग्जांपल क्या गया वहां पे, A agrees to deliver 100 bags of the wheat to the B, हाँ, and B agrees to pay the price only afterwards। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ध्यान में आ रहा है, क्योंकि इसमें दो इवेंट ही नहीं है ना, इसमें बेसिकली इवेंट एक ही है। देखो हाँ, ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है कि A B को 100 bags of the wheat एग्री करता है देने के लिए और B agrees to pay the price only afterwards। हाँ, बस B बोलता है कि मैं आपका wheat 100 बैग लेने के लिए तैयार हूँ, हाँ बट मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। अब यहाँ पे ये एक ही इवेंट है ना कि A 100 बैग्स ऑफ व्हीट देगा और B पैसे दे देगा। हाँ, बस पैसे देना किस पे डिपेंड है बोलो, उसके कंडीशन पे कि मैं पैसे आपको अभी नहीं दूंगा, मैं पैसे आपको बाद में दूंगा, ये कंडीशन मंजूर हो तो कॉन्ट्रैक्ट करो वरना कॉन्ट्रैक्ट मत करो। हाँ, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना कि A agrees to give me 100 bags of the rice, हाँ, and B promises to pay afterwards। हाँ, this is a conditional contract। See, it's not contingent contract। Why? क्योंकि इसमें दो इवेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें एक सिंगल इवेंट। ओके, सो इवेंट रेफर्ड क्या हो जाएगी बोलो, कोलैटरल इवेंट हमें यहाँ पे चाहिए और इस एग्जांपल में इवेंट कैसी बोलो, कंडीशनल है। हाँ, कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट या contingent contract यहाँ पे नहीं है। हाँ, because the event on which B's obligation is made to depend हाँ is a part of the promise itself and not the collateral event। हाँ, यहाँ पे जो ये पार्ट है ये कोलैटरल नहीं है। हाँ, ये मेन ही पार्ट है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट का कि A B को 100 bags of the wheat डिलीवर करेगा और B A को क्या करेगा वहां पे प्राइस वहां पे पे आउट कर देगा, बट आफ्टरवर्ड वो कंडीशन उसने डाली है कि मैं आपको पैसे अभी नहीं दूंगा, मैं आपको पैसे क्या करूंगा बाद में दे दूंगा। सो बी क्लियर, दिस इज अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें दो इवेंट नहीं है, एक ही इवेंट है। हाँ, A agrees to pay 100 bag, A agrees to deliver 100 bags of the rice to the B and B agrees to pay the money but later on। हाँ, then देखो second example where A promises to pay B 1 lakh rupees if he marries C। A B को प्रॉमिस करता है कि वो C से अगर शादी करता है हाँ तो उसको 1 लाख रुपए वो वहां पे दे देगा। अगेन दिस इज नॉट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये क्या नहीं है बोलो, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना,
वापस दो इवेंट कहाँ है देखो, ए प्रोमिसेस टू बी पे ₹1 लाख, हाँ, इफ ही मैरिज सी, ये भी क्या नहीं होगा बोलो, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, हाँ। थर्ड वाला एग्जांपल देखो, ए एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट अ स्विमिंग पूल फॉर द बी फॉर ₹2 लाख, ए बी के लिए एक स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्ट करेगा कितने रुपए के लिए, 2 लाख रुपए के लिए, एंड बी एग्रीड टू मेक द पेमेंट ओनली ऑन द कंप्लीशन ऑफ द स्विमिंग पूल। वो स्विमिंग पूल जब कंप्लीट होगा तभी मैं आपको क्या करूंगा, पेमेंट वहां पे दे दूंगा, हाँ। तो डायरेक्टली वापस देखो ना, सीधी सी बात है, एक ही इवेंट है ना यहाँ पे कि ये स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्ट करेगा और स्विमिंग पूल के कंस्ट्रक्शन के बाद ही भी उसको 2 लाख रुपए का पेमेंट करेगा, तो ये भी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि इसमें कोई कोलैटरल इवेंट है नहीं यहाँ पे। इट्स ऑल्सो नॉट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, एज दैट इज इवेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्विमिंग पूल इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कॉन्ट्रैक्ट, हाँ। स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्ट करना ही तो मेन कॉन्ट्रैक्ट है ना, और स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन पे 2 लाख रुपए देना ये मेन कंसिडरेशन है, ओके। सो ये कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, कोलैटरल इवेंट नहीं है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। सो इन ऑल कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर होना है तो what is required is that the event must be collateral. It should not be the part of main performance, and even it should not be the consideration for the performance. Okay, it should be a collateral event. Example wise याद रखना वो sheep वाला. A agrees to deliver the machine of Atolone to be अगर if sheep arrive safely, तो ही वो उसको क्या करेगा, वहां पे डिलीवर कर देगा, हाँ। तो इसमें हमें कोलैटरल इवेंट वहां पे क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक। देन थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है देखो, द कॉन्टिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी द मियर विल ऑफ द प्रोमिसर, हाँ, मुझे लगता है तो मैं परफॉर्म कर दूंगा, ये भी कभी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हाँ। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे कोलैटरल इवेंट पे डिपेंड है, हाँ, प्रोमिसर के बिल पे डिपेंड नहीं है, हाँ। देखो एग्जांपल, ए प्रोमिसेस टू पे ₹1 लाख इफ ही चूजेस टू बी, मुझे लगा तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, दिस कांट बी अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये कभी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, और बेसिकली ना ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता, हाँ। क्यों, देखो वहां पे ये जो घटना है ये प्रोमिसर के मियर विल है, मुझे लगा तो मैं आपको दे दूंगा, हाँ, दिस कांट बी कंसिडर्ड एज द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम लोग बोल नहीं सकते हैं, हाँ। एंड द लास्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर द